रवि शंकर, द पोलर रीजन रीड करो तो जब तक एडमिट होते हैं बच्चे। मैम विच पेज नंबर? यस मैम रीड कर रहे हैं। रवि शंकर, यस मैम रीड कर रहे हैं। मैम मे आई रीड? सानवी। अच्छा रवि शंकर के बाद करना है ना, अभी उसको रीड करने दो ना। Polar regions are the areas of the global surrounding the pole. The North Pole and the South Pole, they are also known as frigid zones. These regions resting respectively on the Arctic Ocean and the continent of Antarctica are dominated by the polar ice caps. United States, Alaska, Canada, Greenland, Sweden, Finland, Norway and Russia. Siberian region are some countries that have some of their parts in this region. These regions are very cold. The coldest temperature ever known on Earth, -89 Celsius, was recorded in Antarctica. The average winter temperature in the Arctic is about -30. In winter, the seas surrounding Antarctica freeze into solid snow that covers an area almost as big as a continent itself. At the poles, the sun shines for half of the year and it is dark for the other half of the year. Polar bears, penguin, reindeer, seal, whale, walrus are some animals found in such regions. Let us now find out. Ravi, give chance to Anima Sharma. Now you give chance to Anima Sharma. Okay, Anima ma'am. Sharma. हाँ. Anima Sharma. Good afternoon, ma'am. Let us छवि उसके बाद. let us find out how these. हाँ. क्या छवि पूछी थी? रीड करो छवि. अनिमा तुम्हारे पास. उदित राज. पहले कौन पूछा था? छवि पूछी थी. अनिका सिंह. No, ma'am. तो Yes, ma'am. अनिका चलो रीड करो. Yes, हाँ. let's now find out how these animals are able to survive in such regions having such severe and extreme conditions. Adaptation by animals of the polar regions. Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. The body temperature of polar bears, which is normally 37 degrees Celsius, is maintained through a thick layer of fur, a tough hide, and an insulating layer of blubber. This excellent insulation keeps a polar bear warm even when air temperature drops to -37 degrees Celsius. Polar bears are so well insulated that they tend to get overheated. They move slowly and rest often to cool down on warm days or after physical activity. Polar bear can close its nostrils while swimming underwater. A polar bear's front paws propel it through water swimming. The hind feet and legs are held flat and are used as runners. very good. छवि. Ma'am, can I read? छवि. Yes, ma'am. छवि. Another. हाँ. Yes, ma'am. Another animal well adapted to the polar region is the penguin. Penguins have feathers that are extremely densely packed with no gaps between them. This gives them good protection against cold. Each feather has an extra part behind it so that they can fluff their feathers up. This keeps them warm in cold and allow them to cool off when the weather is warm. Penguins do not have air space in their bones as normal birds have. These helps them to sink in water. They have a large layer of bubble beneath their skin, which help them to Continue.
the tropical rainforest. Tropical rainforests are generally found near the equator. The tropical rainforests are सानवी शर्मा, छवि गिव चांस टू सानवी शर्मा। अब लगता है कि सभी ऐड हो गए। चलो सानवी जल्दी से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैम मुझे सानवी की आवाज कट कट के आ रही है। हाँ कट कट के आ रही है, सही बोला सानवी। अब सभी ऐड हो गए हैं। चलो अब पढ़ते, नहीं तो बहुत पीछे दूसरे सेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड रेस्ट होने लगा, तो हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। हाँ, polar region are areas of globe surrounding the poles, North Pole and the South Pole. Whatever area present near the South and North Pole are polar region. They are also known frigid zone. This region resting respectively on the Arctic Ocean and continent of Antarctic are the dominated by polar ice cap. Arctic Ocean and the Antarctica, they are all these area having polar ice cap because temperature is too much low. So water is get converted into ice. अब यूनाइटेड स्टेट, अलास्का देखे हो, नॉर्थ अमेरिका के बगल में, मैप में देखना, आज देखना, नॉर्थ अमेरिका के बगल में बड़ा सा स्टेट अलास्का। अब कोई वहां पे इतना कोल्ड है कि वहां पे कोई वेजिटेशन भी नहीं था और पॉपुलेशन भी नहीं। तो अभी लेकिन अब क्या है कि वहां अलास्का में क्या है कि ये पाया गया है कि पेट्रोलियम का डिपोजिशन है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम एंड दैट्स व्हाई द पीपल आर रशिंग टुवर्ड्स द अलास्का। इट इज जस्ट नियरर टू द नॉर्थ पोल। देखना बड़ा सा बिग ये स्पेस अलास्का का। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड रशिया, the Siberian region are some countries that have some of their part in this region. ये पता है सभी बच्चे को? साइबेरिया, कोल्ड डिजर्ट ऑफ साइबेरिया, बिगेस्ट कोल्ड डिजर्ट ऑफ एशिया, पता है सभी को? नहीं पता? बिगेस्ट कोल्ड डिजर्ट ऑफ एशिया इज द साइबेरिया। और नेपोलियन को वहीं ना ले गया था कोल्ड डिजर्ट में, साइबेरिया के कोल्ड डिजर्ट में। यस मैम। ये हिस्टोरिकल फेमस की भी बात है और कोल्ड डिजर्ट है बहुत सारा। आप सभी इस एरिया को सभी देखेंगे मैप में। These regions are very cold. The coldest temperature even known on the earth -89 degrees Celsius. Recorded in Antarctica. The average winter temperature of Arctic -30 degrees Celsius. In winter, the sea surrounding Antarctica freezes into the solid snow and that cover an area almost as big as the continent itself. जितना बड़ा एरिया ये कंटिनेंट है अंटार्कटिका, वो सारा एरिया जो है, all area are get covered with the snow. At the pole, the sun shines for half of the year and it is dark for other half of the year. It is the reason due to which temperature is very low at the polar region. Only the sun shines for the half of the year and a half of year is in dark. A polar bear, penguin, reindeer, seal, whale, walrus are the animals that found in the polar region. And why these animals, polar bear, reindeer, and walrus are able to survive there? What are the adaptation present in them? What are the structural adaptation present in them? What are the behavior
adaptation present in them, so that they are adapted to polar region. So you will study one by one. Polar bear having white fur, white fur, so that they are not easily visible in the snow. White fur, the polar bear having white fur. So when the predator come, it can disguise themselves in the white snow, है ना? व्हाइट स्नो में क्या होगा कि ये अपने आप को क्या कर लेगा, छिपा लेगा, है ना? और द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पोलर बियर while this is normally 37 degrees Celsius, it is maintained through the thick layer of fur. फर वो जो हेयर कल भी बताए थे, फर स्किन जो है बड़ा बड़ा बड़े साइज में हो गया तो वो फर बन गया. और क्या है, अ टफ हाइड, पर अ टफ हाइड चमड़ा जो है, टफ चमड़ा, ये स्किन जो है अपर लेयर टफ हाइड, एंड द एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लबर. ब्लबर ये जो फैट है ना? तो जस्ट बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ ब्लबर फैट. दैट मैम ब्लबर क्या है? फैट है, फैट. ब्लबर फैट है. इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट. ब्लबर जो है फैट, मैम बहुत सारा फैट डिपॉजिट है, इसलिए यहाँ पे इसको ये लिखा है ब्लबर. तो ये एडेप्टेशन क्या है, व्हाइट फर, टफ हाइड एंड इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लबर. इंसुलेटिंग लेयर का मीनिंग समझो कि ये स्किन है, स्किन के नीचे जो है ब्लबर है, फैट है, और ये क्या करता है, इंसुलेट कर देता है. इंसुलेशन पता है, ये वायर देखो, ये वायर है, ये लैपटॉप को ऐड किए हैं, तो ये इंसुलेशन है. क्योंकि कैसे इंसुलेशन है, प्लास्टिक का कवरिंग है. ये कवर जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बाहर नहीं जा सकता है और ना ही कुछ इसके अंदर आ सकता है. इसको कहते हैं इंसुलेशन. तो सेम वे देयर इज अ इंसुलेशन. मैम जो इंसुलेटिंग, हाँ, तो ये जो है पोलर बियर में भी क्या है, कवर, हाँ, पोलर बियर में कवर है. उसी पहले सुनो, लेट मी एक्सप्लेन. तो ये ब्लबर एंड टफ हाइड makes the body insulated, है ना? So that the heat of the polar bear does not go outside and the cold of the environment does not goes inside the body. Blubber layer insulate the body of polar bear. हाँ बोलो. मैम आप हम लोग को हीट चैप्टर में बताई थी कि मैम जो व्हाइट कपड़ा होता है या कुछ भी वूल होता है मैम, वो हीट कम एब्जॉर्ब करता है. हाँ. और मैम आप अभी भी बताया कि पोलर बियर के जो स्किन होते हैं उसके जस्ट नीचे फैट का वो होता है, लेयर होता है, जो उन लोग को गर्मी ज्यादा प्रिवेंट करता है. गर्मी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं जाने देता है. और व्हाइट फर यहाँ इसलिए होता है व्हाइट फर कि वो प्रीडेटर से प्रोटेक्टेड रहे. व्हाइट स्नो है, स्नो भी व्हाइट है, और इसका फर जो है वो भी व्हाइट होगा. तो वो क्या होगा, किससे प्रोटेक्टेड, प्रीडेटर जो है आसानी से इसको जो है सर्च नहीं कर पाएगा. हाँ, इसलिए इसका व्हाइट फर है. वो उसी में डिसअपियर हो, स्नो में दिखाई ही नहीं देगा प्रीडेटर को. वो फैट का लेयर का नेम क्या था मैम? फैट के लेयर का नेम वही तो ब्लबर दिया है, फैट लेयर को ब्लबर स्पेशल नेम दिया है, ब्लबर. ब्लबर. मैम ब्लबर व्हाइट पर भी तो मैम इंसुलेटर होगा. व्हाइट पर भी तो इंसुलेट करेगा. हाँ, हाइड है, थिक चमड़ा है, हाइड है, तो ये भी इंसुलेट करेगा. और साथ साथ एकदम कंप्लीट पैक्ड हो गया बॉडी. और एक फर है बड़ा बड़ा हेयर, तो उसमें एयर ट्रैप करेगा, तो एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और वो भी. और साथ साथ ये ब्लबर जो है वो भी इंसुलेट करेगा बॉडी को. तो बॉडी जो है कंप्लीट इंसुलेटेड है फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर.
हाँ बोलो। मैम क्या ये मैम इन लोग का जो व्हाइट वुल सा होता है, फर होता है, मैम क्या वो इन लोग को ज्यादा गर्मी देता है, ज्यादा ठंडा देता होगा? फर फर तो हेयर है। अपराजिता का देखो, अभी हम क्लास ये शुरू करने के पहले मेरा बाल भींगा हुआ है, लेकिन इसको हम बाइंड अप कर लिए हैं। क्यों बाइंड अप किए हैं? मम्मी से पूछना कि बाल अगर बड़ा है और खुला रहता है तो कितना बहुत, बाल बन सकती है? हाँ बहुत एकदम मैम बहुत गर्मी लगता है। हाँ गर्मी लगता है ना। तो वो ऐसा होता है कि ये हेयर अगर खुला होगा तो एयर ट्रैप कर लेगा, और एयर क्या है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हम लोग जो है बॉडी से रिलीज करें, हीट रिलीज करें। और अगर ये हेयर होगा, यहाँ देखो ये हेयर ऐसे ओपन है, तो हीट जो बॉडी से रिलीज हो रहा है वो यहीं पे रहेगा। और बहुत गर्मी, बहुत एकदम अभी तो टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हम लोग को बहुत गर्मी देगा। तो इसलिए जो है हम लोग हेयर को बाइंड कर लेते हैं। अब देखो पोलर बियर का क्या है कि पोलर बियर का वो जो फर है, तो वैसे ही वो जो फर जो है हीट ट्रैप कर लेता है, और उसको हीट को बाहर जाने ही नहीं देता है, ये व्हाइट फर। तो ये एडेप्टेशन है। और क्या एडेप्टेशन है मैम पढ़े? मैम मैम हाँ मैम पूछो। मैम अगर हम लोग पोलर बेयर को मतलब कि ये हम लोग के रीजन में, हॉट रीजन में ले आएंगे तो क्या अडेप्टेशन फिर से करेगा? बफेलो क्या करता है? कूल देमसेल्फ रिमेनिंग इनसाइड वाटर। हाँ बफेलो और सरवाइव यस करेगा। मैम। धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा? कौन पूछा? उदित पूछा कि रवि की आवाज थी। ये धीरे धीरे, हाँ मैम खुशी कुमारी। अच्छा ठीक है। पूछी। हाँ खुशी, देखो ना धीरे धीरे अगर वो लैंड एरिया पर रहने लगेगा, हम लोग के जैसा एरिया पर रहने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये जो फर जो है रिड्यूस करेगा। जैसे हम लोग का केनाइन टीथ, हम लोग हर्बीवोरस हो गए, तो ये देखो ये टीथ बहुत पॉइंटेड था पहले, अब धीरे धीरे इसका वर्क नहीं है तो ये रिड्यूस हो रहा है। यही एडेप्टेशन है, स्ट्रक्चर एडेप्टेशन। तो पोलर बियर को भी हम लोग यहाँ ले आएंगे लैंड पे, तो वो धीरे धीरे फर रिड्यूस हो जाएगा, चाहे गर्मी से हो या फिर एडेप्टेशन के वजह से, जैसे भी हो उसमें वेरिएशन होगा। मैम मैंने ज्यादातर बफेलो कीचड़ में देखा हूँ। हाँ तो अच्छे, बफेलो की बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ कर रहे हैं। बफेलो का भी वही एडेप्टेशन है, वाटर में वो अपने आप को डीप करके रखता है। तो ये जो है ना व्हाइट फर पहले गायब होगा। उसके बाद क्या होगा कि कहते हैं कि गर्मी से अपराजिता, ये जो डिपॉजिट फैट है ना, हम भी फैटी हो गए हैं। अगर हम वॉक करें ना, अगर मॉर्निंग वॉक करें, तो ये जो फैट डिपॉजिट है वो मूवेबल फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वो जो फैट डिपॉजिट है मूवेबल फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर स्किन के नीचे फैट नहीं रहेगा। तो ये अगर पोलर बियर यहाँ लाया जाए, तो उसमें ये उसके बिहेवियर में, उसके स्ट्रक्चर में ये चेंज होना पड़ेगा, और ये चेंज धीरे धीरे होगा तभी वो सरवाइव होगा। कल कोरोना की बात किए थे ना कि कोरोना अपने आप को सरवाइव, सुनो ना पहले सुनो, कोरोना अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या किया? कोरोना वायरस जो है अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, तो इतने लॉन्ग टाइम तक मैम सरवाइव है। कर लिया। हाँ हम लोग भी अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज किए। क्या बिहेवियर में चेंज किए? ये ऐड करने लगे, है ना। हम लोग का यही बिहेवियर हो गया चेंज। क्या चेंज हो गया कि हम लोग जो है ये मास्क पहनने लगे कि ये कोरोना वायरस जो फिल्टर होकर के बाहर मास्क ही आए, पहनने लगे। हमारे लंग्स में नहीं आए। तो हम लोग अपने सर्वाइवल का ठिकाना ढूंढ लिए ना, सर्वाइव करने के लिए हम लोग अपने हैबिट में चेंज कर लिए। तो हाँ तो वैसे ही पोलर बियर अगर अपने हैबिट में चेंज करता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, तो वो सरवाइव हो जाएगा, सरवाइव करेगा, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये जो डार्विन का थ्योरी है, थ्योरी क्या है डार्विन का थ्योरी, कौन बताएगा? पहले बोलो। अभी कोरोना है तो ये थ्योरी बहुत ये ट्रेड में आया, प्रचलन में आया। क्या है थ्योरी डार्विन का? मैम किसका थ्योरी? पहले listen all of you very carefully. The organism which is very fit to the environment that will survive.
fit and fine organisms can be survive on the earth, otherwise organisms have to disappear. जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा अर्थ पे। कोरोना मालूम है, हम तो स्कूल जाते थे, हम लोग को बुलाया जाता था, और स्कूल के अलावा हम और भी जगह जाते थे, तो बहुत लोगों को कोरोना पकड़ा। हम अपना एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, बाकी बहुत लोग का एग्जाम्पल कहेंगे कि जो लोग फिट थे उनको कोरोना आया, कैरियर तो बने होंगे लेकिन कोरोना उनको इन्वेड नहीं कर सका। तो जो लोग फिट है, फाइन, अपना एग्जांपल आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इस पर आप डिस्कस अपना करेंगे। एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, अब चलो आगे मैम इसका एडेप्टेशन। हाँ मैम जो क्वेश्चन पूछी कि अगर पोलर बियर को ही इंडिया ले आएंगे तो मैम उसका वो चेंज हो जाएगा। मैम अगर बुफेलो को ही किसी कोल्ड रीजन ले जाएंगे तो मैम क्या बुफेलो में भी एडेप्टिव चेंजेस होंगे? हाँ, चेंज होंगे। अपराजिता एक सुनो ना, साइंटिस्ट सब देखो कोर्स रह जाएगा। एक जो है ना ये अरेबियन घोड़ा, अरेबियन हॉर्स बहुत लंबा होता था और वो बहुत यूजफुल होता था। उस हॉर्स को जो है ना माउंटेनियस रीजन में ले जाया गया, तो वो फिर धीरे धीरे एक जनरेशन ठीक रहा, दूसरे जनरेशन से वो क्या होने लगा, शॉर्ट होने लगा, और शॉर्ट होते होते फिर जैसे माउंटेनियस रीजन का जो हॉर्स होता है वैसा हो गया। तो उसके एडेप्टेशन में वो ले गया था कि लंबा है, इसकी वर्क इफिशियंसी ज्यादा है तो वर्क करेगा ज्यादा, इसलिए माउंटेनियस रीजन में उसको ले जाया गया। लेकिन वो जो बाहर रहने लगा तो उसके क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द माउंटेनियस रीजन, they change their behavior as well as structure। वो चेंज कर लिया, छोटा छोटा हो गया, छोटा छोटा। ये जो अब देखोगे कि ह्यूमन बीइंग का भी लेंथ जो है हेरिडिटी तो है ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। कलर भी, कलर का तो कल तो एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को। अब चलो इसका पोलर बियर को कम से कम 2-3 को फिर डिस्कस करेंगे। इस वीक में इस चैप्टर को एकदम कंप्लीट फिनिश करना है और इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट में चलना है। अब देखो क्या क्या ये दिस excellent insulation keep a polar bear warm even when the air temperature drop -37 degree Celsius। ये due to this excellent insulation polar bear body ये become warm even when the environment temperature fall down -37 degree Celsius। Polar bear are so well insulated that they tend to get overheated। इतना insulated है कि तुरंत overheating हो जाता है उस polar bear का। They move slowly and rest often। इसलिए वो क्या होता है, slowly move करता है। क्यों slowly move करता है, यहाँ कोई बता? They move slowly and rest often to cool down। मैम अगर फास्ट मूव करेगा तो उसके मसल में जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो वो स्लो ये मूव जो करता फैट है। है, वो जो फैट है, वेरी गुड। देखो एकदम साइंटिफिक एटीट्यूड तुम लोग का हो गया है, एकदम अच्छा। ये जो है ना पोलर बियर अगर फास्टली मूव करेगा तो उसका जो ब्लबर जो है, अभी पता है ना कि कोई भी फास्ट रन करेगा तो उसका जो डिपोजिट फैट है वो मूवेबल फैट में कन्वर्ट होगा, है ना, और वो मूवेबल फैट हीट एनर्जी में रिलीज होगा, तो उसको गर्मी होगा ना, गर्मी लगेगा। तो वो देखो वो पढ़ा नहीं है, हीट चैप्टर नहीं पढ़ा बेटा, लेकिन वो एक्टिविटी से उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सूट रखने के लिए, अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट से फिट रखेगा, उस एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करेगा, प्रैक्टिस से उसको पता है। अब दे मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू कूल डाउन ऑन द वार्म डे आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। वार्म डे और फिजिकल एक्टिविटी के बाद, है ना, तो वो रेस्ट करता है फॉर कूलिंग देमसेल्फ। देखो कि कैसा प्रकृति में कैसे कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ये फिट करते हैं। पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल बाय स्विमिंग अंडर द वाटर। नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है
और हम लोग भी हम लोग रह सकते हैं वाटर के अंदर, रह सकते हैं नहीं। थोड़े दिन के, थोड़े समय के लिए गंगा जी में डुबकी जब लगाने जाते हैं, गंगा जी में हम लोग डीप करते हैं, तो ऐसे नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं कि नाक में पानी नहीं आ जाए। नहीं, अगर तुम लोग भी लगाए होगे तो पता होगा। हम लोग तो नानी के साथ हमेशा जाते थे बचपन में, ऐसे नोज को बंद करके, मैम मैंने किया। हाँ हाँ, नोज को बंद करके ऐसे डीप करना। तो ये जो है पोलर बियर को भी ये आता है कि पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर। अ पोलर बियर्स फ्रंट पॉज, आप जब हाँ ये देखो, छठ वठ होता था तो आप छठ में आप बगल में खेत में गड्ढा उड्ढा होता था ये छठ उठ करने के लिए, तो आप उसमें जब पानी पूरा भरा जाता था, लास्ट डे हो जाता था, तो आप उसमें लगाते थे डुबकी। मैम जब घाट पे जाते थे तब भी। हाँ नाक बंद करके, है ना। तो ये देखो पोलर बियर को आता है, पोलर बियर ह्यूमन जैसा ही देखो। हाँ, और क्या क्या एडेप्टेशन है देखो। पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर। अ पोलर बियर्स फ्रंट पॉज प्रोपेल्स, ऐसे कर सकता है, प्रोपेल्स करता है वाटर को, ठेलना मतलब पुश करता है, प्रोपेल करना, है ना। प्रोपेल इट थ्रू द वाटर फॉर स्विमिंग। तो वो स्विमिंग के लिए क्या करते हैं, हाथ से ऐसे नहीं, डाइवर क्या करता है, हाथ से जल्दी 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 वाटर को डिस्प्लेस करता है, और जितना वाटर को बैक डिस्प्लेस करेगा उतना आगे जाएगा। तो ये करता है पोलर बियर का ये फ्रंट पॉज, प्रोपेल इट थ्रू द वाटर फॉर स्विमिंग। द हिंड फीट एंड द लेग्स आर हेल्ड फ्लैट, ऐसे फ्लैट, एंड आर यूज एज रडर्स। रडर्स नहीं, वो देखते हो हवा को, हवा के स्ट्रीम को रोकने के लिए रडर्स जो लगा होता है, एयर को स्ट्रीम रोकने के लिए। नाव में देखा पताका लगा हुआ, नाव में देखा, बोट में देखा हो तुम लोग, नाव में बोट में पताका लगा हुआ एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो वैसे ही ये जो है इसका हिंट फिट जो है, हाँ पता है सबको। पतवार पता है, पतवार नहीं पता है। एकदम देखो ये सब जान करके रखो, अच्छा साइंटिस्ट बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो ये सब जानना होगा। हाँ एयर रेजिस्टेंस को, हाँ बोलो खुशी। मैम जब हम नाव में गए थे, मतलब मैम हम घाट पर गए थे, तो उसको पार करने के लिए जब हम नाव में चढ़ रहे थे, तो हम देखे थे कि नीचे में कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से पानी है ना वो मतलब कुछ चक्का टाइप का लगा हुआ था, जिससे पानी सर्कुलेट हो रहा था। हाँ, और नाव आगे बढ़ रहा था। हाँ वो चपटा टाइप का, उसको कहते हैं, देखो उस पतवार कहते हैं उसको। तो इसके पास उसको चप्पू भी ना कहते हैं। हाँ अंदर मशीन लगा हुआ था। जानवर्स लोग होते हैं पहले क्लॉज को यूज करते हैं अपने, ताकि पानी को ऐसे ऐसे करके चप्पू की तरह पीछे मारे। हाँ अब चलो उसके बाद ये मशीन जो था वो मोटर से चल रहा था। हाँ अब ये एडेप्टेशन है। another animal well adapted to polar region is penguin। अब penguin birds है, penguin जो है, penguin have feathers that are extremely dense packed, है ना, dense packed है, एकदम नजदीक नजदीक है, extremely dense packed है feathers with no gap between them। This gives good protection against the cold। और each feather has an extra part behind it so that can fluff their feather up, अपने feathers को ऊपर से fluff कर सकता, फुला सकता है ना। And this keep them warm in the cold, allowed to cool off when feather is warm। और feather warm होता है तो उसको cool करने के लिए fluff करेगा तो cool हो जाएगा। Penguin do not have air space in their bones। नॉर्मल बर्ड्स हैविंग एयर इन देयर बोन्स। कल भी बताए थे नॉर्मल बर्ड्स फ्लाई क्यों करता है, क्योंकि उसके जो बॉडी में बोन्स है दे आर हॉलो, सिलेंड्रिकल एंड हॉलो, माने खाली है। हम लोग का बोन जो है ना बोन मैरो से फिल्ड है, और ये जो है पेंगुइन का भी बोन जो है उसमें एयर स्पेस नहीं है जैसे नॉर्मल बर्ड्स का होता है। दिस हेल्प टू सिंक इन वाटर। अब ये हेवी हो गया, पेंगुइन्स बिकम हेवी because there is no air space present in the bone, so
they can sink in water. Penguin, they have a layer of blubber fat beneath their skin, which help them to stay warm. A streamlined body and paddle-like feet help them to swim underwater. Streamlined body किसको कहते हैं? ये देखो, ये streamlined body. ये जो हुआ, ये streamlined body, ऐसा body. तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है, ये क्या करता है कि एयर रेजिस्टेंस को, वाटर रेजिस्टेंस को, ये जब स्विम कर रहा होता है तो एयर या फिर एयर तो नहीं, वाटर में स्विम करता है तो मैम उसको काट के आगे बढ़ता है, तो उस पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसके मोशन को अपोज करता है. लेकिन ये जब पेंगुइन हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसा बॉडी है, तो उसके वजह से क्या होगा कि एयर वाटर रेजिस्टेंस उसको कम टॉलरेट करना पड़ेगा और वो आराम से क्या होगा, वाटर में क्या कर सकेगा, स्विम कर सकेगा. अब नेक्स्ट स्विम कर सकते. हाँ, ये हो गया क्लियर. सभी लिख दोगे अपने से. हाँ, किसी भी चीज को, अब देखो इतना एडेप्टेशन पता है, किसी भी चीज को तुम लोग देख करके बता सकते हो कि क्या क्या एडेप्टेशन है इसको, ये प्रेजेंट सराउंडिंग के साथ इसको फिट होने के लिए. हाँ, अब देखो नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हाँ, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के पास, सभी को पता है कि इक्वेटर के पास जो है इतना हाई टेम्परेचर, जो सनलाइट जो है एकदम स्ट्रेट आता है. तो आफ्टर 3 o'clock एकदम एवरी डे नियम से वो रूटीन बना हुआ है कि ओशन है तो वो एकदम हाई टेम्परेचर से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होकर के क्लाउड बनाता है. व्हेन द कूलिंग डाउन, वो क्लाउड कूल डाउन, रेनिंग टेक्स प्लेस आफ्टर 3 o'clock और 4 o'clock. तो एवरी डे रेन है ना. The tropical rainforests are home to the more species of the plant and element than over biomass combined together. पूरा बायोमास को कंबाइन कर दो तो यहाँ जो है स्पीसीज जो है, सबसे ज्यादा स्पीसीज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ये फॉरेस्ट है तो उसमें बहुत सारे दुनिया के जो है सारे स्पीसीज उसमें हैं ऑलमोस्ट. Such forests are found in the India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Uganda, and Nigeria. The Amazon jungle is the world's largest tropical rain forest. सबको पता है ना? तुम सभी को पता है. अब the Amazon, this forest covered the basin of Amazon, the world's second longest river. Central Africa hold the world's second largest rain forest. Rain forests are characteristic by a high rainfall, है ना? Characteristic क्या है? High rainfall, and this often result in the poor soil due to leaching of soluble nutrients. Leaching सबको पता है ना कि rain forest, when the raining takes place, whatever mineral present at the top layer of the soil that get dissolved and sit down into the lower level, है ना. तो ये लीचिंग, तो लीचिंग के वजह से क्या है कि पुअर सॉइल जो है पुअर है, फर्टाइल नहीं है, often result to poor soil due to leaching of the soluble nutrient. Rainforests are home to 2/3 of all the living organisms and the plant species on the earth. It has been estimated that many hundreds of million new species of plants, insects, and microorganisms are still undiscovered and yet unnamed by the scientists. बहुत सारे species है, many species which have to discover, जिसको discover होना है और जो कि अभी साइंटिस्ट उसको डिस्कवर नहीं कर सका है. टेम्परेचर इन such a region has an average value 20 to 25 degree Celsius and very little throughout the year.
or the average temperature of the 3 warmest and the 3 coldest do not differ by the 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेरी नहीं करता है। जैसे हम लोग क्या है, विंटर का क्या है 13 डिग्री है, बहुत वेरी करता है, और अभी जो है 44 डिग्री सेल्सियस है, तो वेरिएशन है ना, बहुत ज्यादा लार्ज वेरिएशन है। लेकिन ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है का विंटर और समर का वेरिएशन 5 डिग्री से ज्यादा नहीं है। तो एक जैसा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इज evenly distributed throughout the year, with the average annual rainfall usually exceeding 2000 millimeter। अब देखो सबसे ज्यादा ये रेन ये रेनी 2000 मिली क्या है मिली meters। अब देखो in India these forests are found in the Western Ghats and Assam। वेस्टर्न घाट और असम क्यों, बोलो कोई बताओ। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है ना, 2 घाट है ना, ईस्टर्न घाट मुंबई के तरफ, ईस्टर्न घाट। मैम क्योंकि वो वाटर रिसोर्सेज के पास है। हाँ क्या है ये, सॉरी, हाँ तमिलनाडु इधर क्योंकि तो है। वाटर ज्यादा मिलता है वो प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए। हाँ ये नहीं, वेस्टर्न घाट के 2 तरह का मानसून आता है। एक तो एक मानसून जो अभी अराइव हुआ और एक रिटर्निंग मानसून। तो 2 टाइम्स वहां रेनिंग होती है ना, एकदम हेवी रेनफॉल वेस्टर्न घाट में। और असम में तो तुमको पता ही है, असम का चेरापूंजी पहले था और मानसीराम जो है अब हो गया, डिफॉरेस्टेशन के वजह से ये जो सेंटर ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल वो थोड़ा शिफ्ट कर गया, वो अब हो गया मानसीराम का। तो ये जो है यही इंडिया में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट एंड असम। These forests are home to animals like monkey, ape, gorilla, lions, tiger, lizard, elephant, leopard, snakes, birds, insects. Animals living in these forests have got adapted to in the living areas, ranging from trees to lake or even underground, है ना। Whatever animal and species or plants living in this area, they are adapted to this environment. Adaptation by the animals of the tropical rainforest, and animals that provide a good example of such adaptation is the red eyes frog, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वन एनिमल्स गुड अडेप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट, रेड आईड फ्रॉग। इस आई कैसा है, रेड है, red eyes frog। The long limbs of these frogs are better suited for climbing the